Sunday, we had a lunch at my home and we were interviewing all those who are on the, can't hear. Now it's okay. Now it sounds a little loud. Okay. Sunday, we had a lunch at our home and we were interviewing all those who were seeking membership after doing the membership course for Harvest Grace Church. और पिछले रविवार को एक लंच और एक खाना रखा था जहां पर सब लोगों का एक तरीके से इंटरव्यू हो रहा था जो भी हार्वर्ड ग्रेस कलीसिया का भागना चाहते हैं. And as people interacted and had और जैसे जैसे लोगों ने बातचीत करी, उनसे सवाल जवाब किए, Nigel kept bringing up this illustration of the Ark of Noah. और नाइजल जो थे वो घड़ी घड़ी उस मिलाप के तंबू के बारे में बात कर रहे थे. नहीं, the Ark, the नूह की जहाज के बारे में. नूह के जहाज के बारे में. And he said the Ark was a messy place and so is the church, but still the place of God. और उन्होंने बताया कि वो जो नूह का जहाज था वो एक ऐसी जगह थी जहां पर काफी गड़बड़ी गंदगी थी, लेकिन कलीसिया भी वैसी ही जगह है. And as he was sharing this, I felt a stirring in my heart. और जैसे वो बांट रहे थे तो उनको लगा कि दिल में कुछ उमड़ाव हुआ. And I felt sometimes it is good to have a look at the story of Noah and the ark. और कई बार ऐसा लगता है कि अच्छा है कि हम नूह की जो कहानी है उसे देखें, उसके जहाज की कहानी के बारे में देखें. And understand what we are as his church. और समझें कि हम कौन हैं, परमेश्वर के लोग किस तरीके से हैं और उसकी कलीसिया कैसे हैं. And how the ark speaks into us as a community and even as individuals. और कैसे वो नूह का जो जहाज था वो हमारे जीवनों में बात करता है और हमारे समुदाय में बात करता है और खासकर हमारे लोग अपनेपन में भी बात करता है. So that is what we will be looking at this morning. और आज की सुबह हम उसे ही देखेंगे. I called it the boat that Noah built. और जो शीर्षक है वो ये है कि जो नूह ने बनाई थी. All right. We live in a world today. I mean, if you look all around us. और हम आज एक ऐसी दुनिया में रहते हैं, अगर हम आसपास देखेंगे, where people live struggling, और जहां पर लोग जीते हैं, संघर्ष करते हैं, in fear, और डर में रहते हैं. They don't know what's going to happen next. वो नहीं जानते कि अगले बार आगे क्या वाला है. They're trying to hold on to life. Life seems to be missing them. और वो जीवन को जैसे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जीवन जो वो आगे भागता जाता है. And as they struggle, their sinfulness grows more and the situation around gets worse. और जैसे वो संघर्ष करते हैं तो पाप का जो जीवन है वो आगे बढ़ता जाता है. And in the midst of all this struggle around us, और इस सारे संघर्ष के बीचों बीच there is this place of sanctuary. और वहां पर ऐसी एक जगह है जो एक बागान की तरह है. You know, Moses writes in one of his books, he says, when somebody seeks sanctuary in the temple, it should be given. He is safe over there. और मूसा जब हमें समझाते हैं कोई अगर किसी शरण स्थान को ढूंढ रहा है तो वो परमेश्वर के भवन में उसे मिलेगी. And this morning I want to look at this ark, this boat that Noah built. कि सुबह हम उस जहाज को देखना चाहते हैं जो नूह ने बनाया था. The first thing we want to look at is how it was a place of sanctuary. और पहली चीज जो हम देखेंगे कि किस तरीके से वो एक ऐसा शरण स्थान था. You know, whatever we see around us in the world, और हम जो भी कुछ अपने आसपास इस दुनिया में देखते हैं, is actually the indication of the judgment of God coming upon this world and its sinfulness. और जो हमारा पाप का जीवन है और जो परमेश्वर का कहर है उसके बारे में, मतलब वो कब आने वाला है उसके बारे में देख. Just as the waters began to rise and the ark began to float. और जैसे जैसे पानी का जो स्तर था वो बढ़ता गया और जो नाव थी वो ऊपर तैरने लगी. As the sinfulness of people trying to hold on goes, the ark begins to float. People, the sinfulness is being judged, and slowly but surely, all that sinfulness drowns and under the judgment of God. But the ark rises up.
और जो परमेश्वर का न्याय है वो तरीके से पानी की तरह जब ऊपर उठता है तो पाप जो है उसके नीचे दबता जाता है और वो शरण स्थान उस परमेश्वर के न्याय के ऊपर तैरने लगता है। The ark is above the judgment of God. जो नाव है वो परमेश्वर के न्याय से ऊपर है। God is in the judgment, परमेश्वर न्याय के बीच में है is in the ark. और परमेश्वर उस शरण स्थान में भी है। In the judgment, he is the judge, the maker of heaven and earth, और who जब will call all men to account. परमेश्वर न्यायी है और वो हर बुरे और अच्छे का और हर इंसान का न्याय करेंगे In the water, वो पाप के समय पानी पाप का जो है उसमें, but on the ark, लेकिन वो उस शरण स्थान में करेंगे। he is the father of heavenly lights. All families on the earth are blessed. और उस जहाज में उस शरण स्थान में परमेश्वर एक पिता समान है जहां पर हर एक परिवार आशीष है। And you and I live in the shelter of Most High, the ark of God, rising above the waters of judgment, going towards a destiny. और आप परमेश्वर के बच्चे कहलाए गए हैं और हम उस न्याय से ऊपर उस शरण स्थान में रहेंगे प्रेम में। It is in this togetherness of coming together as God's people, as a church, as united with people, being part of the family. और ये एक तरीके से जैसे हम एक साथ मिलते हैं एक परिवार की तरह एकजुट हैं। We do find shelter from the judgments of this world. और हमें इस दुनिया के न्याय से एक शरण स्थान तो मिलता है, but it also says something to us. लेकिन वो हमें कुछ कहता भी है। It says we recognize और हमें ये कहता है कि हमें इस बात को पहचानना है that which is drowning around us. वो जो हमारे आसपास डूब रहा, that world वो जो दुनिया है is empty, pale and poor as we sing. और वो जो दुनिया है वो दुख में है, वो दर्द में है और वो गरीब है। India is all about knowing Jesus. और जो शरण स्थान की बात अगर हम करें तो उसमें परमेश्वर यीशु मसीह को जानना है हमें। And all came into the ark. और They जो came knowing only in the ark और was life. जो लोग भी उस शरण स्थान में उस नाव में आए वो ये बात को वहां पर ही जीवन है। Whatever kind of animal, bird or creature or human being entered the ark, they knew in the ark is the shelter of God. और जो भी पशु पक्षी जितने भी जानवर उस जहाज में आए वो ये बात को जानते हुए आए कि वहां पर परमेश्वर उन्हें जीवन देगा। In the ark, they will sense the storms outside. और जब वो शरण स्थान के अंदर होंगे तो वो बाहर के तूफान को जरूर से पहचानेंगे। It will affect the ark. और वो जो उसको भी असर करेगा। But it is a place can survive from that storm of life and overcome. लेकिन उस शरण स्थान में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। The waves may toss the ark from here. Often we go through this. The church or the ark is a messy place. It tosses here and there and left and right and up and down. And sometimes people get sick in a boat. और जब तूफान आता है तो जो जहाज होता है वो इधर से उधर उमड़ता है, क्योंकि जब पानी ऊपर उठता है तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। और कलीसिया में भी हम देखते हैं कि हमारे जीवनों में कई बार जो मुश्किलें आती हैं हमें हिलाती हैं। But लेकिन you will not drown. लेकिन आप डूबेंगे नहीं। You will into the ark, the people of God, and are safe. परेशानियों में डूबेंगे नहीं, क्योंकि आप शरण स्थान में आ चुके हैं जो परमेश्वर का शरण स्थान है जहां पर जीवन है। So what do we say? तो हम क्या कहें? Do we then say, okay, I'm tired and bored of this, or I can't handle this, I want the life, so I jump back into the waters? और क्या हम ये कहें कि नहीं मुझे अब ये जिंदगी पसंद नहीं है और वापस से उस पानी में डूब जाऊं? That is why the Bible is so full of saying, don't go back. Don't turn back. It's like going and saying, I'll get drowned with the rest things, and you will suffer the consequences of a drowning. Whereas you were called to be safe and secure in an ark. और इसीलिए जो बाइबल है हमें बार बार वापस ना जाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप इस परेशानियों से ऊपर तरार करें। And even as we stay secure, as is God's,
with God's people, living for Him and for our brothers and sisters. और जैसे हम इस तरीके से जीवन जीते हैं परमेश्वर के शरण स्थान में ऊंचों के साथ अपने भाइयों बहनों के साथ, हमें परमेश्वर अपनी अनुग्रह दिखाता है। The ark becomes a place where we can dream of better things. और जो शरण स्थान है वो एक ऐसी जगह बन जाती है जहां पर हम सपना सकते हैं अच्छी चीजों का। Yes, the storms may tire out the ark being tossed, but we can still dream like, of better things. We have got a future, we have got a hope, we have got a destiny, and so we're secure as one people standing together wherever God has placed us. और जैसे तूफान आते हैं, हमें परेशानियां आती हैं, हमें इस बात को जानना है कि अगर हम उस शरण स्थान में हैं तो हम वहां पर मजबूत हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें संभाल के रखेगा अपने लोगों के साथ। You know that song which says, there's a place we can go there to the city of the Lamb. और एक गीत है जो कहता है कि हाँ, एक ऐसी जगह है जहां हम जा सकते हैं जो परमेश्वर के मेमने की जगह है। Because this place, the ark, the shelter of God's church and God's people, will endure till the end. क्योंकि ये जो जहाज है, जो शरण स्थान है, ये आखिर तक डटा रहेगा। Because Jesus said, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मैं अपनी कलीसिया नरक के फाटक उसके सामने नहीं टिकेंगे। Those waters were like the gates hell, swallowing and pulling down those who would not find her in the ark. और जो वो पाप था वो उस पानी के तरह था जो लोगों को खींच रहा था और लोगों को उस शरण स्थान में जाने से रोक रहा था। We have been called to better things. हमें बुलाया गया है और बड़ी बातों के लिए। Okay, so even if we are tempted sometimes and say, Lord, I want to give up, I want to run away. और कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे सामने एक परीक्षा है और हम कहें कि हाँ परमेश्वर अब मेरे से नहीं हो रहा, मैं बस छोड़ के त्याग देना चाहता हूँ। Remember, it is only in the ark we can find the safety, security and sanctuary of God, where He is truly our dwelling place. ध्यान दीजिए कि आपको वो सुरक्षा, वो सहमति वहां पर उस शरण स्थान में ही मिल पाएगी। Here we can dream and know we have a calling, we have a destiny, and we can see what He wants us to do and move towards it. और यहाँ पर हम जानेंगे और जानते हैं कि हाँ हमारी ईश्वर ने एक चीज के लिए हमें बुलाया है, हम आगे उस चीज को देख सकते हैं, दृश्य देख सकते हैं। Where you thought the world said you were useless, you have no worth, you have no value. जहाँ पर दुनिया हमें कहती थी कि हमारी कोई मूल्य नहीं, कोई फायदा नहीं है। Year of Jesus, the ark Himself, और यहाँ पर प्रभु यीशु की आवाज खुद एक शरण स्थान है। will say, you have a purpose, और वो कहता है कि तुम्हारा एक मकसद है, you have a destiny. आपका एक भाग्य है। You are to be the person I made you to be. और आप वो इंसान बनोगे जो मैं चाहता हूं कि तुम बनो। And I will make you the best you could ever be. और मैं तुम्हें वो सबसे अच्छा तुम्हारा दूंगा। But if you choose the other life, लेकिन अगर आप दूसरी जिंदगी को चुनते हैं, you will have one purpose. You will have one purpose. आपका एक ही मकसद होगा। Struggle by hook or by crook. संघर्ष करते रहो और जैसे तैसे Earn as much as you can. जितना कमाना चाहो कमा सकते हो। Eat, drink, have children and die without a hope, without a purpose, without a destiny. और खाओ पियो आनंद करो, बच्चे पैदा करो और उसके बाद मर जाओ, क्योंकि आगे कोई भी मंजिल नहीं है। That is the church we live in. कलीसिया जिसमें हम रहते हैं। God builds us together as a people. और जैसे परमेश्वर हमें अपने लोग होने के नाते हमें बनाता है, बढ़ाता है, together traveling through the horrors of this time. And throughout this has been the way. और हम लोग एक साथ उस डराव से खुद एक साथ मिल के निकलते हैं। Tell your neighbor, it is here and only here I will find my purpose,
my destiny and my mission for life. और अपने पड़ोसी को बताइए कि यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर मैं अपना मकसद और अपना आगे का जीवन का जो आगे का जीवन है वो मैं उसे यहाँ ढूंढ पाऊंगा, यहीं पर। Tell your neighbor. That is wherever God puts you in the ark. Yeah. Tell them there is no place like the church. और कहिए कि कलीसिया जैसी और कोई जगह Tell नहीं them, है। keep saying this. बोलते रहिए इस बात को। Yes, it is messy. Yes, हाँ। things are not always right, but it is the best place we can ever be. हाँ, ये एकदम गड़बड़ वाली जगह है, हर चीज हर बार अच्छी नहीं होती, लेकिन वही जगह सबसे बढ़िया जगह है, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वास है। Because one day the judgments of God will end. क्योंकि एक दिन परमेश्वर का न्याय जो है वो खत्म हो जाएगा, And the ark will land on solid ground, और वो जो जहाज है जमीन पर आएगा, where the rainbow will go across the sky and say, all the promises of God are now yours for eternity, forever and ever. और फिर वो इंद्रधनुष आपको जब दिखेगा और वो बताया जाएगा कि आपके सारे के सारे वादे आपके लिए हैं, आज से लेकर आने अनंत काल तक। That Noah built और जो जहाज नूह ने बनाया था, took all of creation and life to a new world and a new future. और वो सब जीव जंतुओं को एक नई जगह पे, एक नए जीवन में लेके गया था। But that Jesus builds, लेकिन जो नाव यीशु बना रहे the हैं, church or the church, local churches and all the churches of God, as he builds them, he takes them into the future, a place where the city of the Lamb stands. और जो परमेश्वर यीशु मसीह अपनी नाव बना रहे हैं, यानी कि उनकी कलीसिया, वो उसको एक ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जो कहलाई जाएगी एक ऐसा शहर जो मेमने का शहर है। That is the first thing I want to say. This is your sanctuary. और पहली चीज जो आपको कहना Enjoy चाहता it and हूँ be glad in it. कि ये आपका शरण स्थान है, इसी में खुशी मनाइए। The second thing is want to look at is, what does Noah and the ark teach us about being a people of. और दूसरी चीज जो बताना चाहेंगे कि नूह का जो जहाज था वो हमें क्या है कि हम किस तरीके के लोग हैं। I took an old phrase saying from Abraham about the government being और- of the people, for the people, and by the people. और जो हमारे देश में है, गवर्नमेंट में, कि हम नहीं, अब्राहम लिंकन की पुरानी कहावत है जो सरकार के बारे में है, जो कहता है सरकार लोगों का है, लोगों के लिए है, और लोगों के द्वारा और लोगों का है, लोगों के लिए है। ओके, लेकिन take that phrase, write it for you as the ark in the church or the church. What is the church and what does that mean? और एक बार उसको फिर से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम कलीसिया के मध्यस्थ में पढ़ेंगे। Each one of you आप में से हर जन of God, परमेश्वर का है, by God, परमेश्वर से है, and for God. परमेश्वर के लिए है। It's not about the people. और ये बाकी It's लोगों about के बारे में God. नहीं है, ये परमेश्वर के बारे में है। And therefore, you and I can sing of the goodness of God. और इसलिए मैं और आप आज जो हमने गीत गाया कि हम परमेश्वर की भलाई के गीत गा सकते हैं। Being of God, परमेश्वर का होना, we know, and He tells us, He reveals to us His intent. और वो हमें परमेश्वर बताते हैं कि पश्चाताप करो। No, His intent. इंटेंट, उसका मकसद वो हमें बताता है। His will. वो परमेश्वर की क्या इच्छा है, Okay, and His plans. और आगे परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं हमारे लिए। We, as people of God, are called to hear His voice. और हम जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें बुलाया गया है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने। Jesus said, यीशु "My ने कहा, sheep hear my voice." और यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ों मेरी आवाज को सुनो।
There are many voices in the drowning world. और इस डूबती हुई दुनिया में बहुत सारी आवाजें आपको सुनाई देंगी। Which voice? Sometimes our own voice can be in that drowning world. और कई बार हमारी खुद की आवाज उस डूबते हुए सागर की तरह होती है। But do we hear his voice? तो क्या हम उसकी आवाज अपनी आवाज सुनते हैं या वो बाकी आवाजों को सुनते हैं? Before building the ark, Noah saw the world was evil, but he heard the voice of God, and और that changed the destiny for all life. और जब पूरी दुनिया पाप में थी तो नूह ने देखा उस चीज को, लेकिन उस वक्त भी परमेश्वर की आवाज को सुना और उस रीजन से उस पूरा हमारा आने का आगे आने वाली जो पीढ़ी थी उसका पूरा भविष्य बदल गया। You and I hear the voice of God when he called us by name and said, "Come, follow me." और मैंने और आपने परमेश्वर यीशु मसीह की आवाज को सुना जब यीशु ने कहा आओ और मेरे पीछे चलो। He said, "You are mine and I am yours." तब यीशु ने कहा कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं, आ जाओ। And that's not where he stopped. और वहां पर ही वो रुके नहीं। He tells you his concern for the world. और वो बताते हैं कि वो इस दुनिया के बारे में कितना सोचते It हैं। says this wickedness has grown, judgment must come. और वो कहते हैं कि यहाँ पर जो बुराई है वो इतनी बढ़ चुकी है, इसलिए न्याय का आना जरूरी है। And then he gives you a purpose. I will build an ark to save the world. I will go out. I will preach the gospel. I will share the word of God. And I will say, come and be saved with the people God calls forth and chooses as his own. इसलिए परमेश्वर हमें एक मकसद देता है कि वो एक ऐसा शरण स्थान बनाए जहां पर लोग आ सकें और परमेश्वर देख सकें, उसकी अच्छाई को देख सकें और बचाए जा सकें। Then he even tells you what to do if you will sit down before him and ask him. और फिर अगर आप उनके सामने बैठते हैं वो आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। And you don't have to just hear, many people I often hear, I was once in another city and someone, God has called me to be a great preacher on this platform and I'm going to preach the gospel to many people. I'm going to share God's word. And I said, very good, nice. और एक इंसान से मिले जो उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी है कि मैं इस बड़े मंच पर खड़े होकर परमेश्वर के वचन को प्रचार करूं और यही मेरी बुलाहट है। तो डोनाल्ड ने कहा बहुत बढ़िया। I said, have you been reading your Bible? और उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपने अपनी बाइबल पढ़ के खत्म कर ली है? He said, no, when I pray, I open my Bible, I read that and then I close it and say, thank you God, and I go. और उन्होंने कहा नहीं मैं करता हूँ, बाइबल खोलता हूँ, थोड़ा सा पढ़ता हूँ और बोलता हूँ धन्यवाद परमेश्वर। And I said, God has called you to be a preacher, which means you got to prepare to be a preacher. और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने तुम्हें उसके वचन को बांटने के लिए बुलाया है, तैयारी करनी होगी उसके वचन से। Which means you not only to read the word, you got to study the word, meditate the word, know the word and make the word who you are. और इसका मतलब ये है कि आपको उस वचन को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसे मनन भी करना है, उसे समझना भी है और उसे अपने अंदर अपना बनाना है। Noah heard the word build an ark. और नूह ने ऐसी एक आवाज सुनी परमेश्वर की कि एक जहाज बनाओ। That was the call. वो परमेश्वर की बुलाहट थी। But when he heard from God details and began to build it not alone, there was a good team, his family, his sons, his sons' wives. They built together and they went into the forest, they cut trees, they worked hard, and it says they worked for if you calculate, someone said it's 87 years they were working, not knowing what was going to happen. और जब परमेश्वर की आवाज नूह ने सुनी तो वहां पर वो बैठ नहीं गया, वहां से वो गया, जंगल में लकड़ी काटी और सिर्फ वो नहीं, उसके पूरे परिवार में, उसके बेटे साथ में, उसकी बीवी, उसकी बहुएं, सब लोग लगे और कहा जाता है कि 87 साल तक उन्होंने ऐसी मेहनत करी। And God would say that to us. और परमेश्वर वो हमसे कहेंगे, be the evangelist, be the prophet, be the whatever he said. और वो परमेश्वर हमसे कहें कि जाओ समाचार बांटने वाले बनो या भविष्यवक्ता बनो। But when do you become one? Just suddenly like that? One day the waters will come and you won't be ready because they have not to show. और वो ऐसे ही हो जाएगा, एक दिन अचानक से बन जाएंगे, ऐसा होगा?
नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा कि वो पानी जो है, जो पाप का पानी है, वो आएगा एकदम से और वो आपको उड़ा के ले And जाएगा। I believe this morning God would ask each one of you, और आज की Henry, सुबह हम सबसे बात पूछेंगे, what are you doing with the command I gave you, the promise I gave you to make you who you're going to be? और परमेश्वर आपसे पूछेंगे कि आप उस बात के बारे में क्या कर रहे हैं जो मैंने आपको दिया है, जो मैंने आपको आदेश दिया है कि जाओ ये करो। Are you going to sit on your seats and say, thank you, God, I'm going to be the evangelist. Thank you, God, I'm going to be this, and do nothing about it? कहेंगे कि हाँ, धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मुझे सुसमाचार फैलाने वाला बनाया है या भविष्यवक्ता बनाया है। Because the day will come when you'll find yourself on your platform and not know what to say, what to do, or how to even go about it. और एक दिन ऐसा आएगा जहां पर आपको नहीं पता होगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप जब वहां खड़े होंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। If we build church and if we build our lives, we must prepare for the things God has told us He wants us to be. और अगर हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है तो हमें उन चीजों की तैयारी करनी पड़ेगी, इन चीजों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में बोला है कि हमें करना है। It's hard work. Those who work in the church know how hard it is. बहुत मेहनत का काम है। जो लोग कलीसिया में काम करते हैं उनको पता है कि कितना मेहनत का काम है, But it has to be done. लेकिन उसे करना होगा। And even as we prepare, और जैसे हम ये करते हैं और हम अपनी अपनी तैयारी करते हैं, the time comes समय आता है to fulfill the purpose for which we were called. तब हम उस चीज मकसद को पूरा करने का समय आता है जिसके लिए हमें बुलाया गया था। Not be found wanting like those 10 virgins. Were they 5 or 10? Five. 5 virgins who did not prepare for that moment. और उन 5 कुमारियों के पाई गई थी जो तैयारी में नहीं थी जब परमेश्वर आए। They sat with their lamps and saying, okay, the bridegroom's coming, we've got oil. And they didn't prepare. और वो उस तरह से वहां पे गीत तो गा रही थी कि हाँ, हम दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी तैयारी पूरी नहीं थी। When it was time for them to take center stage and walk to greet the bridegroom and bring him home, they were not there because they didn't have oil in their lamps. और जब वो समय आया कि जब वो दूल्हा वहां पे आ गया और उसके साथ जाने का समय था, उनके पास तेल ही नहीं था और वो तेल लेने के लिए गए थे। God has called each one of you and me to live in the ark. और क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है कि हम उस शरण स्थान में रहें, Live as people. उसके लोग बन के रहें, Okay? For success. और For success. प्रतिष्ठा के लिए, यश के लिए. यश के लिए। Because He wants our success. He wants to see us be fruitful. क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम यशस्वी हों। And the Noah and his family who built that ark and traveled saw the animals in the ark being fruitful and multiplying. और नूह ने जब जहाज बनाया था और उसके अंदर जो भी पशु पक्षी थे, जानवर थे, वो सब आगे बढ़े, उन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। Because he saw the need, not just to hear God, but to act upon what God said, even if everyone else disagreed. क्योंकि उन्होंने सिर्फ परमेश्वर की आवाज को सुना नहीं, पर उसके बाद उसके आगे कार्य किया और आगे उसको बनाया। 1 second, arise, come here. Okay, that is, understand, our lives begin for, okay, what did I say? It is of God. Everything that we have is of God. Our salvation is of God. Our righteousness is of God. Our calling is of God. Everything starts with Him, endures with Him as we plan it, and ends with Him receiving the glory for all that we do. जो भी कुछ हम हैं वो परमेश्वर का है, जो उद्धार है वो परमेश्वर का है, जो जीवन है वो परमेश्वर का है, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा है। And it is by God. और ये परमेश्वर की तरफ से भी है। Because no matter how well Noah built, the ark survived only because of the grace, the favor, and the hand of God upon it.
और ये बात हमें जाननी होगी कि कितनी बढ़िया जहाज नूह ने क्यों ना बनाया हो, लेकिन वो सिर्फ वहां पे इसलिए तैरा क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह, ईश्वर की आशीष उस पर थी। It didn't seem to leak. और वो वहां पर टूटा नहीं, It didn't seem to a rock. और वो किसी पत्थर से टकराया नहीं। The lightning and thunder from the sky didn't break it in pieces. और जो आसमान से बिजली चमक रही थी उसने उसको तोड़ा नहीं। Because Noah's family, in believing God, wanted them to do something क्योंकि and trusted Him to see it through. क्योंकि नूह और उसके परिवार ने उस जहाज को परमेश्वर के नाम में जानते हुए, अपने आप को जानते हुए कि परमेश्वर ने इस बात की बुलावट दी है, उससे बनाया था। Do you trust God to see your life through? क्या आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ते देखने के लिए? Or do you feel you got it through? क्या आपको लगता है कि आपको देखना है कि आपका जीवन कहाँ जा रहा है? Because God is more interested in you than you are in you. परमेश्वर आपके जीवन में आपसे ज्यादा रखता है, जितना रुचि आप अपने बारे में नहीं रखते, परमेश्वर उससे ज्यादा रुचि रखता है। And so we need to call out and say, God, I want to be part of the plan you have for this world, for the future, for eternity. I want to be part of this. तो इसलिए हमें उस पुकार को सुनना है। जब परमेश्वर हमें बुलाते हैं और कहते हैं कि आओ इस चीज का भाग बनो, हमें कहना है कि हाँ परमेश्वर, मैं इसका भाग बनना। I want to discover my purpose. मैं चाहता हूं कि मेरा क्या मकसद है, मैं उसे जानना चाहता हूं। And I want to implement your blueprint for my life, my blueprint. और मैं परमेश्वर, मैं आपके प्लान, आपके अक्षय को अपने जीवन में उतारना चाहता हूं, अपने को आगे नहीं करना चाहता हूं। Because my blueprint will end me up in the drowning sea or drowning waters around me. Yours will take me through. क्योंकि जो मेरा नक्शा है परमेश्वर, वो मुझे उस डूबते हुए पानी में पाप खा देगा, लेकिन आपका नक्शा जो है वो मुझे उस नाव में, उस शरण स्थान में ले जाएगा। Hear what he says and prepare for it. और समझिए और सुनिए परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं। Now it is 30 years ago we got married. और 30 साल पहले शादी हुई थी। And at that time we are all an English speaking church. और उस समय हम एक सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाली कलीसिया थे। And I remember in a train I was sitting in about a missionary. और मुझे याद है कि मैं ट्रेन में जा रहा था और एक किताब पढ़ रहा था एक मिशनरी के बारे में। I was a young man with much more hair and a different colored hair also. एक जवान इंसान था जब मेरे बाल सफेद थे और ज्यादा भी थे। I didn't have children and बाल they काले weren't थे getting, और उस समय बच्चे नहीं थे। and they were not getting married either. और They वो were not there. उन बच्चों की शादी नहीं होने वाली थी क्योंकि वे थे ही नहीं. क्योंकि वो थे ही नहीं। So, and I remember God saying, I want you to reach the nations, but you are too posh. और परमेश्वर की आवाज ऐसी आई कि मैं I चाहता हूं want to कि reach this nation, but you are too posh. मैं चाहता हूं कि इस भारत देश के बीचों बीच जाए, लेकिन तू बहुत ही ज्यादा पॉश है, बहुत ज्यादा हाई फ्लू है। Will you be able to reach the people क्या तुम in लोगों the तक पहुंच English पाओगे? language? क्या तुम अपनी अंग्रेजी भाषा से लोगों तक पहुंच पाओगे? And I said, but that's the language I speak. I was born up and brought up with. I don't know any other language well. तब परमेश्वर से ने कहा कि मेरे को वही भाषा आती है क्योंकि उसी भाषा में मैं पैदा हुआ हूँ, पढ़ा हूँ और मुझे वही बोलना आता है। What do I do, God? मैं क्या करूं परमेश्वर? And I was reading this book, and this lady in the book has her Arabic Bible and her Dutch Bible side by side, and she is learning to read this book with that book, understand the language. और जब वो मिशनरी की किताब को पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये जो औरत थी, ये एक तरफ अरबी बाइबल और दूसरी तरफ डच बाइबल को पढ़ रही थी, एक साथ पढ़ के सीखने की कोशिश कर रही थी। And I said, yeah, God, I can read the Hindi script. I promise you, I will buy a Hindi Bible and I will read it, hopefully daily, because I was not very sure, but I will read it through. और तब परमेश्वर वायदा किया कि हाँ परमेश्वर, मैं एक ऐसी बाइबल खरीदूंगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा होगा और मैं उसे पढ़ूंगा। A week later, and I reached the place, I bought a Bible. और एक हफ्ते बाद जब मैं वहां पहुंचा जहां मुझे पहुंचना था, वहां पर मैंने बाइबल खरीदी। There was no Hindi speaking people. I was doing this in my quiet time.
और वहां पर उस समय पे कोई भी हिंदी बोलने वाले लोग नहीं थे। मैं अपने जो शांत के समय में ये बात कर रहा था It was परमेश्वर a very difficult Hindi Bible, very difficult version to read. और वो बहुत ही मुश्किल एक बाइबल का हिंदी वर्जन था। And I read it. और And उन्हें for पढ़ा 2 years, cover to cover twice. और 30 साल में शुरू से लेकर अंत Not तक 2 साल. दो साल 2 साल Saal, में I'm not quoting. शुरू से लेकर अंत तक 2 बार इन्होंने पढ़ा। And suddenly one day, I was asked to leave the church I was in, and I ended up coming to Harvest of Grace Church. And there was not yet Harvest of Grace Church, but they were starting a Hindi church. And I was the only one who could read the Bible and speak Hindi because I was reading the Bible. And I said, God, you know best. और फिर परमेश्वर उन्हें यहाँ पर लेके आते हैं हार्वेस्ट ऑफ ग्रेस कलीसिया में, जो अंग्रेजी बोलने वाली कलीसिया थी, किसी को हिंदी पढ़ना नहीं आता था, और वहां पर ये पहुंचते हैं और यहाँ पर वो हिंदी बाइबल पढ़ Now, पाते हैं। if I followed my blueprint, I hate Hindi. I don't think it's a great language, and I would never have read it and been very arrogant. और अगर मैं अपने नक्शे के हिसाब से सोचूं, अपने हिसाब से सोचूं, तो मुझे हिंदी बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये हिंदी भाषा ही पसंद नहीं है, और मुझे लगता है कि क्यों ये हिंदी भाषा। और मैं ऐसा करता रहा, मैं घमंडी ही रहा होगा। और so if I would do things like this, I would have been a very proud guy. But God taught me language because I was willing to do what I didn't want to do. और परमेश्वर मुझे पढ़ना सिखाया क्योंकि मैं वहां रहा था जो असल में मैं करना नहीं चाहता था। And He also changed heart. और इस दौरान में परमेश्वर ने मेरे दिल को भी बदला। He taught me to love people no matter what language they spoke. और उसी दौरान परमेश्वर ने मुझे ये भी सिखाया कि हर एक जन को प्रेम करना है, उससे कोई फर्क And नहीं पड़ता कौन सी भाषा बोलते हैं। God will do when you obey Him. He और will change. He will give you ability, but He will also change your heart. और परमेश्वर वो आपके लिए कर पाएंगे अगर परमेश्वर के अधीन होकर उसकी आवाज सुनेंगे और वो काम करेंगे जो परमेश्वर आपसे करने को कह रहे हैं। Because His plans are by Him for you. और क्योंकि जो वो विचार हैं परमेश्वर के, वो उनकी तरफ से हैं आपके लिए। Prepare accordingly and persevere in faith. Don't say, I don't like it, so I won't do it. Say, Lord, you've said it. I don't like it, but I'm going to start doing it. और कहे परमेश्वर से कि हाँ मैं करूंगा, हाँ मुझे पसंद नहीं है करना, लेकिन क्योंकि आपने बोला है करने को, इसलिए मैं करूंगा। And one day you will say, thank you, Lord. और एक दिन I आप will कहेंगे, sing of the goodness of God. और एक दिन आप कहेंगे परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि मैं गीत गाऊंगा कि हाँ परमेश्वर आप महान हैं। All my life you have been faithful. Never once have you failed me. आप हर दिन परमेश्वर आप विश्वासु रहे मेरे लिए, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब आपका विश्वास मेरे लिए कम हुआ। But we stick with our own stubbornness. We will not know the goodness of God. लेकिन अगर हम अपने हट में अगर हम ढीठ हो जाएंगे तो हम परमेश्वर की भलाई को नहीं देख पाएंगे। And finally, it's all for God. और आखिर में ये सब कुछ परमेश्वर के लिए है। The ark speaks of leaving and cleaving like Adam and Eve. It leaves one world and cleaves to a new one. और ये उस चीज को दर्शाता है कि हम एक चीज को छोड़ते हैं और दूसरी चीज को पकड़ते हैं। One style of life, one scenery, one landscape into another. और एक तरीके के जीवन को जहां पर एक दृश्य हमें दिख रहा है उसको छोड़कर दूसरे में। And we may not like sometimes the ark, but when we cling to it, the ark changes us. और कई बार हमें नहीं अच्छा लगता है ये शरण स्थान, लेकिन अगर हम उसे चिपट के रहेंगे तो ये शरण स्थान हमें बदलाव लेके आएगा। The animals came to Moses and entered the ark. It calls us, the ark calls us to come and present ourselves to Jesus and to His church, to serve, to submit, and to know the goodness of God. और जैसे ही वो जीव जंतु ने आज्ञा मानी नूह की और वो शरण स्थान में घुस गए, वैसे ही हमें भी यीशु की आज्ञा मांगनी है और कहना है कि हाँ प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, अब मेरे जीवन के साथ वो करिए। And there the ark of God, because it's for God, early in the morning we'll get up like all the sons of Moses and sweep the decks and throw all the urine and the waste of the animals. We will feed them, we will care for them, we'll probably even help them deliver their babies, and we will work from morning to night
और तब because it's no longer a burden but a joy. We have taken his yoke upon us. हम खुशी से उन सब कामों को कर पाएंगे, जैसे वहां पर उन सब बच्चों ने जानवरों का मल मूत्र भी साफ किया, उन्हें सफाई करी, उन्हें अच्छे से रखा और शायद उनके बच्चे भी पैदा किए। तब उन्हें ऐसा नहीं, इतना मुश्किल काम है, क्योंकि परमेश्वर का जो जुआ है वो हल्का है। And we must know we are never alone. We work together as a family, और as a team, like Noah and his family. और आपको ये बात जाननी है कि हम कभी भी अकेले नहीं हैं, हम एक टीम की तरह हैं। जैसे नूह और उसका परिवार एक टीम था, वैसे हम भी एक बड़ी टीम है। And so we don't, the ark will again say, bear with one another in love. You don't like his face, he doesn't like yours, but love one another. और Bear with one another. एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें। हो सकता है कि आपको एक की शक्ल पसंद ना हो, लेकिन हो सकता है उसको आपकी शक्ल पसंद ना हो, लेकिन प्रेम में आगे बढ़ते रहें। The church is a messy place, but you will learn to bear up with those who are not like you and still care and love them और कलीसिया and value them और एक as God's treasured possession. और कलीसिया एक बहुत ही अजीब जगह है, जहां पर सब चीज साफ सुथरी नहीं है। हो सकता है कि आपको कोई चीज पसंद ना हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो वो चीजें कर पाते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। And so just remember, we are marching on a mission and a destiny. और इस बात को ध्यान रखिए कि हम आगे बढ़ रहे हैं एक भाग्य और एक मिशन के लिए। And we will not let these storms shake us around and buffet us. We will stand up on the deck and learn to stand even if it shakes from left to right. और हालांकि कितने तूफान भी आए, हम लोग अडिग रहेंगे, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। Like the animals on the ark, we will continue to increase and multiply and bear fruit. और बिल्कुल उन्हीं जानवरों की तरह जो उस जहाज में शरणस्थान में थे, वो आगे बढ़ते रहे, अपने आप को आगे बढ़ाते रहे, उसी तरीके से हम भी आगे बढ़ते रहेंगे। Like Noah and the family will care for one another and be there for one another's success. और जिस तरीके से नूह और उसके परिवार ने सबका ख्याल रखा, वैसे ही हम लोग भी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और एक दूसरे की यश में हम उसके बढ़ोतरी देंगे। We will work. We will live a life of hard work and self-discipline. और हम जीवन जिएंगे कठोर काम करने का और अनुशासन का। And carry the mandate that says to us, increase and multiply, be fruitful, rule. और परमेश्वर की उस बात को आगे लेके बढ़ते रहेंगे कि जाओ और आगे बढ़ो, अपने बहुगुणित हो और आगे बढ़ते रहो। Just know one thing. एक बात को जानिए, The ark speaks of not being a one-man show. और जो शरण स्थान है वो ऐसा नहीं है जहां पर सिर्फ एक इंसान ही हीरो है, but of people on a mission together. लेकिन ऐसे लोग जो एक साथ एक मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं। 8 people worked hard to build the ark. 8 लोगों ने बहुत मेहनत करी कि वो उस जहाज को बना सकें। Thousands of animals came to be part of the ark. और हजारों पशु पक्षी उस जहाज में आए। They journeyed together in the raging waters. और वो उन्होंने साथ में सफर किया उन बहुत ही कड़ी तूफान में। And together they reached the end of the journey where the promises of God were inherited and they could receive it. और एक साथ वो उस जगह पर पहुंचे जहां पर परमेश्वर के वादे का खुलासा उनके सामने हुआ। This is your call, my call. Can we embrace it and say, we are the church? और ये आपकी बुलाहट है, ये मेरी बुलाहट है, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये ही कलीसिया है। God has called us to a better thing and we are safe and secure the ark of his love. Amen. और परमेश्वर ने हमें बहुत सी चीजों के लिए है, और इसलिए हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के इस जहाज में सुरक्षित हैं। आमीन।